Hello bachon. So today we are going to start again a new topic, that is, now you see bachon, this is triangle, right? So this is angle A, angle B, angle C. Okay, when you add these three angles, this is called sum of interior angles, because this is interior angle, this is interior angle, and this is also interior angle. So we have three interior angles. So when you add these three interior angles, you can call this as sum of the interior angles. तो आप इसको बच्चों sum of interior angles बोल सकते हो. और sum of interior angles फिक्स होता है, ट्राइंगल में फिक्स है, क्वाड्रिलेटरल में फिक्स है. तो ऐसे करके बच्चों in every polygon the sum of interior angles is always fixed. Okay, now you see sum of interior angles in polygon of n sides, the formula is n minus 2 into 180 degree. तो ये बच्चों फॉर्मूला है जिससे आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल if I put n equal to 3, where n is number of sides, you know that. So sum of the interior angle equal to n minus 2 into 180. This is the formula. n के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 minus 2 into 180 degree, 1 into 180 degree, 180 degree. उसी तरह से बच्चों quadrilateral, you know that quadrilateral is a polygon having 4 sides, तो n equal to 4. So in the formula I am putting n के जगह पे 4, 4 minus 2 into 180 degree. So the formula is n minus 2 into 180 degree. So I got 4 minus 2 into 180 degree, 2 into 180 degree, this is 360 degree. Okay, next is pentagon. In pentagon the number of side is 5, so n equal to 5. So here I will be putting n minus 2 into 180 degree. So 5 minus 2 into 180 degree, 3 into 180 degree, 540 degree. So in pentagon, if you add all the interior angles, you will be getting 540 degree. Is it clear? Next is hexagon. Hexagon, the number of side will be 6. So 6 minus 2 into 180 degree, 4 into 180 degree, 720 degree. So in hexagon, okay, it could be any type of hexagon. Regular होना जरूरी नहीं है बच्चों, कोई तरह भी हेक्सागन हो सकता है. उसमें आप सारा एंगल को ऐड करोगे, यू विल बी गेटिंग 720 डिग्री. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज वन साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये बना दिया मैंने बच्चों ऑक्टागन. तो ऑक्टागन में दिस इज वन इंटीरियर एंगल, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 interior angles बच्चों, ठीक है. So the formula will be n minus 2 into 180 degree. n के जगह बच्चों आप लिखोगे 8 minus 2 into 180 degree. 8 minus 2 is 6 into 180 डिग्री. 6 0 0, 8 5 40, 48 का 8 का 4 बच्चों, तो 1080 डिग्री. अगर आप ये सारे इंटीरियर एंगल को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 1080. ऑलवेज अगर ऑक्टागन है तो आप सारे इंटीरियर एंगल को ऐड करोगे, यू विल बी गेटिंग 1080. रेगुलर होना जरूरी नहीं है, कोई भी ऑक्टागन चलता है, ठीक है बच्चों. नेक्स्ट यू सी, क्वेश्चन ऐसे रहेगा. तो बच्चों आप लोग इसके आगे, मैंने हेक्सागन तक किया है, इसके आगे आप लोग हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनगन और डेकागन भी प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों. एंड द फॉर्मूला इज n minus 2 into 180 degree. तो लाइकवाइज यू कम टू नो व्हाट विल बी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों. ओके, अब देखिए ये है ट्राइंगल. नाउ in triangle, suppose two angles are given. Angle 60 degree is given A and angle B is given. You will be asked to find angle C. आपको angle C निकालने के लिए पूछा रहेगा, ठीक है बच्चों. सिंपल है. अब देखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो आपको मालूम है. दिस इज, आप इसको बोलना बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी. इसका एक नाम है
एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यू नो इट। एंगल ए के जगह पे 60 डिग्री, बी के जगह में 40, सी के जगह में सी इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 40 इज 100 प्लस सी 180 डिग्री। 100 को आप लेके जाओगे RHS में, सो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। तो ऐसे करके बच्चों आप जो मिसिंग एंगल है इसको आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? हियर this is quadrilateral because it has got 4 sides. Is it clear? So angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. Again आप इसको बोल सकते हैं angle sum property of what? Quadrilateral. ठीक है बच्चों, अब एंगल ए के जगह में 80 डिग्री लिख देना, बी के जगह में 70, सी के जगह में सी लिख दोगे, डी के जगह में 120 इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों ये तीनों एंगल को प्लस करोगे, 270 प्लस सी इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस 270, सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री। तो ऐसे करके बच्चों आप बचा हुआ एंगल निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, यू सी केयरफुली। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB is a straight line. Is it clear बच्चों? अब देखिए, and OC is a ray. तो OC को क्या बोलेंगे बच्चे? रे। अब देखिए, this angle AOC and plus this angle COB, आप ये दोनों एंगल को बच्चों ऐड करोगे, ठीक है, you will be getting 180 डिग्री। ऑलवेज याद रखेंगे कौन सा दो एंगल? एंगल AOC एंड एंगल BOC। AOC प्लस BOC, AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री हमेशा बच्चों। सपोज ये एंगल 100 है, ये एंगल पूरा 100 है बच्चों, तो ये एंगल होगा 80। 100 प्लस 80 इज 180 डिग्री। Suppose angle AOC is 150 degree, then this angle has to be 30 degree. 150 plus 30 is 180 degree. Okay बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 70 है, तो AOC के जगह पे मैंने 70 लिख दिया, प्लस BOC इक्वल टू 180, BOC इक्वल टू 180, 70 उस तरफ चला गया माइनस 70, सो BOC इक्वल टू 110 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, याद रखिएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियर पेयर। वाई पेयर? Because we are getting two angles. Linear why? Because it is a straight line. Okay? Linear pair. Very important. ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? Okay. So today we have studied about angle sum property in triangle, angle sum property in quadrilateral, angle sum property in other polygons and linear pair. अब देखिए, this is the sum. यहाँ पे कैसे करेंगे लीनियर पेयर बच्चों? मैं आपको और एक बार अच्छा से सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, this is a ray, then this angle plus this angle must be 180 डिग्री। ये दोनों एंगल को आप प्लस करोगे, आपको मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आप कैसे भी बना दीजिए। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन, ये मैंने बनाया रे। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री आएगा। अगर ये बच्चों 80 है तो ये एंगल को होना चाहिए 100, बिकॉज 100 प्लस 80 इज 180 डिग्री। ये एंगल अगर 90 है बच्चों तो ऊपर का एंगल को होना चाहिए 90, बिकॉज 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री। ये एंगल बच्चों अगर 60 है तो ऊपर का एंगल को होना चाहिए 120। क्यों बच्चों? बिकॉज 120 प्लस 60 इज 180 डिग्री। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? चलिए अब देखिए ये सम को कैसे करोगे, अच्छा से देख लीजिए बच्चों। सबसे पहला बात, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये क्या है? दिस इज पेंटागन। वी हैव 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। 1 2 3 4 5। सो दिस इज कॉल्ड पेंटागन एंड यू सी दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? चलिए अब आपको निकालना है एंगल x। ये एंगल आपको निकालना है। सो दिस एंगल इज क्वेश्चन मार्क। स्टेप बाय स्टेप बताइए कैसे करोगे। सबसे पहले बच्चों देखिए,
दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका नाम है x, दिस इज y। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बच्चों, एक्स वाई इज ए लाइन। एकदम सही है बच्चों। तो आपको लग रहा है ये एंगल, फिलहाल आप केवल उसी को देखिए जिसको मैं, अब देखिए ये जो मैं बना रहा हूं ये है स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड दिस इज ए रे। तो पूरा फिगर में बस इसी को फोकस करिए, दिस इज ए रे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बताइए बच्चों, एक्स वाई इज ए लाइन एंड बी ए is ray. Is it clear? So I can say that this 60 degree and this angle, ये जो एंगल है बच्चों मिला के क्या होना चाहिए 180 डिग्री। वी विल कॉल दिस एज ए लीनियर पेयर। सही है गलत है बताइए बच्चों। आप सारा फिगर मत देखिए, इफ यू सी एंटायर फिगर यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ओनली यू सी द फिगर विच ए मार्क्ड विथ स्केच पेन, ठीक है। तो इसको देखेंगे आपको लगेगा ये लाइन है, ये रे है, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री विच इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों बताइए, एंगल का नाम क्या है, ए, दिस इज बी, दिस इज एक्स। आई विल राइट एंगल ए बी एक्स प्लस ये एंगल का नाम क्या है बच्चों, ए बी वाई। दिस इज एंगल ए बी वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर बच्चों। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। नाउ व्हाट इज ए बी एक्स बच्चों, सॉरी दिस इज नॉट ए बी एक्स, आई एक्स बी, ओके ए बी एक्स सही है। सो 60 डिग्री प्लस एंगल, दिस एंगल ए बी वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आप इस 60 को बच्चों RHS में लेके जाइए, माइनस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ए बी वाई इक्वल टू 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यानी आपको ये एंगल मिल गया 120 डिग्री। तो यू गॉट दिस एंगल एज 120 डिग्री। सिंपल है ना बच्चों, यानी मैंने लगाए यहाँ पे लीनियर पेयर। अभी नेक्स्ट लीनियर पेयर कहाँ लगाएंगे बताइए बच्चों, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे, देखिए कैसे लगाऊंगा। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, दिस सी डी इज ए रे, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी लीनियर पेयर, है ना बच्चों, क्लियर है। तो एक ही फिगर के अंदर आपको बहुत सारा काम करना है। सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए रे, सो दिस एंगल 50 डिग्री प्लस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों। अब मैं लिखता हूं, देखिए अब बच्चों देखिए, आप लगाओगे एक्स वाई इज ए लाइन एंड डी सी इज ए रे, सो एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी वाई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पे आएगा बी सी डी, ये है बी सी डी बच्चों, उसके बाद है डी सी वाई, मिला के दोनों को आएगा 180 डिग्री, जिसको कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों। फिर आप वैल्यू पुट करोगे एंड अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग बी सी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो बच्चों ये जो एंगल है बी सी डी, ये एंगल आपको मिल जाएगा 130 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो यानी लीनियर पेयर मैंने यहाँ पे लगाया और लीनियर पेयर यहाँ पे लगाया, दो लीनियर पेयर मैंने लगा के 120 डिग्री एंड 130 डिग्री मुझे मिल गया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अभी फिलहाल आप इसको भूल जाइए, ये जो मैंने बंद किया है हाइड के, इसको भूल जाइए, भूल गया मत देखिए। अभी आपको बच्चों क्या दिख रहा है, केवल आपको दिख रहा होगा पेंटागन, दिख रहा है ना पेंटागन, चलिए बहुत बढ़िया। तो पेंटागन में टोटल इंटीरियर एंगल्स प्लस करेंगे बच्चों, आपने निकाला था ना पेंटागन, देखिए पेंटागन का आता है 540 डिग्री, यानी इफ यू एड ऑल दिस 5 एंगल्स यू विल बी गेटिंग 540 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों। अब ये पांचों एंगल को प्लस करिए और इक्वेट करिए 540 से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए मैं कैसे करता हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा ए बी, ध्यान से देखिए, सी डी ई
इज ए पेंटागन। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इज ए पेंटागन। तो पेंटागन होगा तो बच्चों क्या बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 540 डिग्री। अगर आपको 540 डिग्री याद नहीं है बच्चों, फॉर्मूला लगा सकते हैं रफ साइड में, n-2 इंटू वॉट 180 डिग्री। n इज 5, 5 - 2 इज 3 बच्चों, तो 3 इंटू 180 डिग्री आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 540 डिग्री। क्लियर बच्चों। नाउ ए जो है बच्चों, ए यहाँ पे है x प्लस बी इज 120 डिग्री। बच्चों ये सारा मैं फिगर देख के लिख रहा हूँ। c इज 130 डिग्री, d इज अगेन x एंड e इज 50 डिग्री। देखिए बच्चों ये सारा मैं यहाँ देख के लिख रहा हूँ। ये है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों मैं आपके आसानी के लिए मैंने इसको ग्रे कलर से कर दिया है। तो ये जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है बच्चों, तो दिस कलर यू विल कॉल इट एज ए पेंटागन। तो ये जो पूरा फिगर है बच्चों, ये है पेंटागन। ठीक है बच्चों। तो अभी मैंने लगा दिया पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैं प्लस करूंगा। सो दिस x एंड दिस x यू विल बी गेटिंग 2x इक्वल टू यहाँ आएगा 540 डिग्री। ठीक है बच्चों। 120 प्लस 130 250, दिस व्हेन यू ऐड यू विल गेटिंग 300 इक्वल टू 540 डिग्री बच्चों। अब मैं 300 को वहां लेके जाऊंगा। सो दिस बिकम्स 2x इक्वल टू 540 minus 300. So this 2x I am going to get 240 बच्चों। x 2 और x के पीछे मल्टीप्लीकेशन साइन है, वहां जाके डिवीजन हो जाएगा बच्चों। 240 डिवाइड बाई 2, 2 1 0 2, 2 1 0 2, 2 2 0 4 0 बच्चों। तो x इक्वल टू यू विल बी गेटिंग 120 डिग्री। इज इट क्लियर। तो बच्चों यू गॉट x इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो यानी ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या काम किया है और एक बार रिवीजन कर रहा हूं मैं आपके साथ। फर्स्ट आपको लगाना है लीनियर पेयर। कहां पे, एक्स वाई इज ए लाइन एंड ए बी इज ए रे। सो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो आपको ये 120 निकल जाएगा बच्चों। फिर दूसरे केस में अगेन एक्स वाई इज ए लाइन एंड डी सी इज ए रे। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो आपको 120 डिग्री निकल जाएगा बच्चों। उसके बाद में ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। ओके, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 540 डिग्री बच्चों। आप सारा वैल्यू पुट करोगे तो एक्स निकल जाएगा। तो एक ही फिगर में आपको बच्चों अलग अलग लॉजिक लगाना है। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा इसको। अब देखिए ये वाला सम है, ध्यान से देखिए। मैं कराऊंगा नहीं, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ जाना। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, दिस इज द फिगर। तो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी बिकॉज इट हैज गॉट 3 साइड। साइड नंबर 1, दिस इज साइड नंबर 2 एंड दिस इज साइड नंबर 3। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये आपका है ट्राइंगल। अब देखिए ध्यान से, दिस ई से लेके सी तक आप बोल सकते हो ए लाइन है, और बी से लेके ए तक बोल सकते हो रे है। सो एंगल x प्लस एंगल 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यानी पहला काम आपको करना है बच्चों, क्या करेंगे बताइए। आपको करना है x प्लस 40 इक्वल टू 180 विच इज लीनियर पेयर को शॉर्टकट में लिखेंगे LP। तो यहां से बच्चों x निकल जाएगा। ये 40 को RHS में शिफ्ट करिए, 180 माइनस 40 यू विल बी गेटिंग 140 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये है x। तो ये x निकल गया वेरी इजीली। अब बताइए यहां कैसे काम करेंगे। अब देखिए डी बी इज ए लाइन और जो ए सी है ये है रे। सो z प्लस 90, तो यहां लिखेंगे बच्चों z प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। सो यू विल कॉल दिस एज लीनियर पेयर। ओके बच्चों। फिर 90 को वहां लेके जाएंगे तो आपको z मिल जाएगा 90 डिग्री। तो यू गॉट z ऑल्सो। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, यू नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री, करेक्ट। तो अब क्या लिखोगे,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गया बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। आपको ए दिया है, आपको बी दिया है, आराम से ये जो सी है ये निकल जाएगा। आ गए ना बच्चों समझ में? अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ये एंगल आपको मालूम चल गया। 90 प्लस 40 इज 130, 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। तो बच्चों ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है। अब देखिए आपको फिर से लगाना है लीनियर पे। ये देखिए पूरा ए से लेके एफ तक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सी से लेके बी तक रे है बच्चों। तो यानी ये जो एंगल है 50 प्लस वाई, दैट इज आप लिखोगे 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर। सो y इक्वल टू 50 को वहां लेके जाओगे बच्चों तो ये मिल जाएगा 130 डिग्री। देखिए आराम से हो गया ये भी। तो यानी आपको लगाना है इधर लीनियर पेयर टेंटेडैन, यहाँ लीनियर पेयर टेंटेडैन, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, ये एंगल निकल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ लीनियर पेयर टेंटेडैन। तो 3 लीनियर पेयर लगाना है बच्चों और आपको एक एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल लगाना है। बस इतना ही है। तो यानी आपको 2 ही डंडा लगाना है, एक एंगल सम प्रॉपर्टी का बच्चों और एक लीनियर पेयर का। अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर देखते हैं ये वाला। इसको कैसे करोगे बताइए? कम ऑन चल मी फास्ट। देखिए 130 और x, यहां से लीनियर पेयर से ये x निकल जाएगा, लीनियर पेयर से ये y निकल जाएगा, लीनियर पेयर से ये 50 से z निकल जाएगा, और ये 3 एंगल आपको मालूम है, ये एंगल आपको निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल से। बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है ना, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों? तो एक आ जाएगा 130 प्लस 90 प्लस 50 प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों? फिर वहां से डी निकल जाएगा। तो यानी यहां भी मैंने लगाया लीनियर पेयर कितने जगह पे? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह लीनियर पेयर, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद 4th जगह में लीनियर पेयर, फिर से लीनियर पेयर। यानी आपको 2 ही डंडा चलाना है बार बार, लीनियर पेयर एंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर एंगल सम प्रॉपर्टी। आगे बच्चों समझ में? तो बच्चों देखिए मैं दोबारा से समझा रहा हूं आपको। तो आप पहले बोलोगे डी पी इज ए लाइन एंड ए बी इज ए रे, 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, एक्स निकल जाएगा। फिर यहाँ बच्चों आप बोलोगे ए क्यू इज ए लाइन एंड बी सी इज ए रे, देयरफॉर 90 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ब्रैकेट पे लिखिएगा, वहां से वाई निकल जाएगा। अब यहाँ क्या बोलेंगे बताइए आप? कम ऑन टेल मी। बी आर इज ए रे लाइन एंड सी डी इज ए रे, therefore 50 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, वहां से z निकल जाएगा बच्चों। उसके बाद ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, therefore एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, 360 डिग्री सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बी डी निकल जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे सी एस इज ए लाइन, डी पी इज ए रे, therefore एंगल सी डी पी जो आपको मिला होगा वो लिख के प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहां से टी निकल जाएगा। होमवर्क कर दीजिएगा बच्चों। उसके बाद आप डिस्कस करते हैं। चलिए अब बताइए इसको कैसे करेंगे, आराम से बताइए। सबसे पहले बच्चों आपको ये 90 से अंदर आना पड़ेगा, फिर आपको ये 50 से अंदर आना पड़ेगा, 115 से अंदर आना पड़ेगा, फिर ये तीनों एंगल से आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से x निकालना पड़ेगा। तो आपके एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ बच्चों, आप ना इसको नाम दे दीजिए 1 एंगल, इसको नाम दे दीजिए 2 एंगल, इसको नाम दे दीजिए 3 एंगल। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, ध्यान से देखिए। इसको दे दीजिए 4। तो आप यहाँ पे लिखना जी बी इज ए लाइन, सी डी इज ए रे, बस। उसके बाद 90, उसके बाद ऐसे लिखेंगे बच्चों 90 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए शॉर्टकट में हो जाएगा, दिस इज लीनियर पेयर। तो यहाँ से आपको एंगल 1 निकल जाएगा, एंगल 1 90 को वहाँ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री।
तो एंगल 1 आ गया 90 डिग्री। आसान है ना बच्चों। तो आपको पूरा नाम DCB लिखने की जरूरत नहीं है, DCB की जगह पे आप एंगल 1 ही लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कैसे काम करोगे बताइए। ये जो पूरा CH है लाइन है और ये DA है रे है, सब लिखोगे। बोलिए 50 + 2 = 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल 2। तो एंगल 2 बच्चों निकल जाएगा, 50 को वहां फेंकिए, यू विल गेटिंग 130 डिग्री। टैन 2 भी निकल गया। यहाँ कैसे बोलेंगे बच्चों बताइए। बोलिए कौन है लाइन, ये लाइन है, DE इज ए लाइन, AB इज ए रे। सो एंगल 3 मत लिखना बच्चों, एंगल 3 लिखना, ऐसे लिखना, एंगल 3 + 115 = 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 आ जाएगा, आप 115 को वहाँ फेंकना बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = 360 डिग्री लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D = 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल। वहां से बच्चों आपको ये एंगल निकल जाएगा, एंगल B। फिर उसके बाद बच्चों आप बोलेंगे AF इज ए लाइन, BG इज ए रे, देयरफॉर एंगल 4 + एंगल X = 180 डिग्री। ये लिखोगे, एंगल 4 + एंगल X = 180 डिग्री। और 4 तो आपको निकल गया होगा बच्चों, जो भी मिला लिख लीजिए, 50 60 जो भी लिख दीजिए, 50 + X का जगह X लिख दीजिए, फिर 180 डिग्री। फिर आप 50 को वहाँ फेंक दीजिए बच्चों, तो X = 180 - 50, आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। बस ऐसे करना है, सिंपल। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सी दिस इज ए रेगुलर, 1 2 3 4 5 साइड है बच्चों, रेगुलर पेंटागन। सो हाउ आई से दिस इज रेगुलर पेंटागन, मुझे कैसे मालूम चला। देखिए सिंगल डॉट दिया है, सिंगल। इसका मतलब क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर ये है 2 सेंटीमीटर बच्चों, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। सो whenever we get a regular pentagon, all the angles are also equal। याद रखिए बच्चों, रेगुलर मतलब ही है एंगल्स भी इक्वल हो गए, साइड भी इक्वल होगा। तो जब भी साइड इक्वल हो जाता है ना, समझ जाना कि एंगल भी इक्वल होगा, और जब भी एंगल इक्वल हो जाता है ना, तो समझना कि साइड भी इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, दे आर इंटरडिपेंडेंट। नाउ इफ दिस इज एक्स, ये भी क्या होगा बच्चों, एक्स होगा। दिस विल ऑल्सो बी एक्स, दिस विल ऑल्सो बी एक्स, दिस विल ऑल्सो बी एक्स। ठीक है बच्चों, तो आप बोल सकते हो एंगल A = एंगल B = एंगल C = एंगल D = एंगल E = कितना आता है बच्चों, X। ये सारा एंगल आपस में इक्वल है। आप नीचे लिख देंगे दिस इज बिकॉज वी हैव रेगुलर पेंटागन। तो क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन। उसके बाद बच्चों आप सारा एंगल को प्लस करके 540 से इक्वेट कर दीजिए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E = 540 डिग्री। आगे बच्चों अब सबका जगह में क्या लिख दोगे, X + X + X + X + X = 540 डिग्री। अब सबको प्लस करोगे बच्चों, यू विल बी गेटिंग 5x = 540 डिग्री। अब 5 और x के बीच मल्टीप्लीकेशन साइन बच्चों वहां जगह डिवीजन हो जाएगा, तो 540 / 5 10 108 ये आ गया बच्चों। तो यू गॉट x as 108। तो ऐसे करके निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने जो भी सम डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सम को करके मुझे आज शाम तक व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, शाम को 7 बजे तक मुझे अच्छे से कर दीजिए। कोई डाउट है तो कॉल करिएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको 2-3 हथकंडा ही लगाना है। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टीज का और दूसरा लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।